Hello students, today we will discuss a numerical problem based on the three-stage compression with flash chamber. The three-stage compression with flash chamber I was discussed yesterday. So today we will discuss the numerical problem. An ice plant working on ammonia as refrigerant works between the overall pressure limit of 2.5 bar and 15 bar. It is fitted with expansion valve with vapor extraction at 5 bar and 10 bar. The load on the plant is 10 TR. Find the circulation of refrigerant through the condenser and the power required to drive the heat. And I hope you understand this question, the meaning of this question. As given in the question is the overall pressure limit. Overall pressure limit. Okay. The overall pressure limit are 2.5 bar and 15 bar. It means it is the evaporator pressure and it is the condenser pressure. तो जब आप पी एच चार्ट ड्रॉ करेंगे तो जो लिमिट ऑफ द प्रेशर होगा लोअर प्रेशर इज दिस एंड हायर प्रेशर विल बी दिस. ओके, एंड इट इज़ फिटेड विद एक्सपेंशन वॉल्व विद वेपर एक्सट्रैक्शन एट 5 बार एंड 10 बार. 5 बार एंड 10 बार पे क्या हो रहा है, आपका वेपर एक्सट्रैक्शन हो रहा है. इसमें ये डायरेक्टली नहीं दे रखा है कि फ्लैश चैम्बर यूज़ हो रहा है, तो वेपर एक्सट्रैक्शन फ्लैश चैम्बर में ही होता है. तो अंडरस्टूड है कि फ्लैश चैम्बर यूज़ हो रहा है और ये एक्सपेंशन वॉल्व जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो किस प्रेशर पे है, 5 बार एंड 10 बार पे. यानी कि दो फ्लैश चैम्बर लगे हुए हैं, एक 10 बार पे लगा हुआ है और एक 5 बार पे लगा हुआ है. ओके, द लोड कैलकुलेट करना है तो द लोड ऑन द प्लांट इज 10 TR. कैपेसिटी दे रखी है रेफ्रिजरेशन साइकिल की, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रखा है इनडायरेक्टली, दैट इज 10 TR. ओके, नेक्स्ट फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट थ्रू द कंडेंसर. कंडेंसर के थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट एज यू सीन द लास्ट वीडियो in which I have discussed the theory of this topic. So the mass flow rate through the condenser, we assume that it is m. M is the mass flow rate through the condenser. Okay, this is the mass flow rate. Mass flow rate. Okay, so we find the mass flow rate and power required. Power required मतलब we find the overall work done of the lower pressure, work done of the intermediate pressure, work done of the higher pressure compressor. So these three compressor, so we find the total work done and then the power. Okay, now the PS chart, you see the PS chart of this. पॉइंट 1 पे आपका द एंट्री ऑफ द वेपर in the compressor at point 1 and this is the exit of the evaporator. evaporator से जो exit हो रहा है वो saturated vapor हो रहा है, वो compressor 1 में आपका enter हो रहा है. अगर आपको कुछ confusion है तो last video देख लें, तो वहाँ पर ये enter हो रहा है कंप्रेसर 1 में. कंप्रेसर 1 का मतलब है लोअर प्रेशर कंप्रेसर. जो साइकिल वर्क कर रही है वो 2.5 और 15 के बीच में वर्क कर रही है. एंड दीज आर द प्रेशर ऑफ द फ्लैश चैम्बर, जहाँ पर वेपर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है. वेपर और लिक्विड आपके सेपरेट हो रहे हैं इस दो प्रेशर पे, जो आपका जिस पे फ्लैश चैम्बर आपके लगे हुए हैं. ओके, नाउ द refrigerant in the form of the vapor, saturated vapor, exit from the evaporator and enter into the first compressor at the point 1, and this will be the compression process of the compressor 1, and here it exit at point 2. If we start from the condenser, the mass flow is m. It goes into the expansion valve. After go into the flash chamber, as you see
द डायग्राम इन द लास्ट वीडियो। तो यहाँ पर क्या है आपका एट पॉइंट 8 द वेपर एंड द लिक्विड, the vapor form and the liquid form of the refrigerant will separate. So vapor form will go through at point 5 in the compressor, and the high pressure compressor, this is the high pressure, this is the low pressure, and this is the intermediate pressure. This is the intermediate pressure compressor. These are the three compressor. तो यहाँ पर क्या है, ये हाई प्रेशर कंप्रेसर में इंटर करेगा एंड द लिक्विड विल गो, दिस इज ओनली द लिक्विड फॉर्म. नाउ the mass flow rate of the vapor is m. Okay, the mass flow rate of the vapor is m5, and if m mass of the refrigerant exit from the condenser at point 7 and enter into the flash chamber. In the flash chamber, the vapor and the liquid will separate. The mass m5 will go into the compressor and m9 will go into the next expansion valve, and this m9 will be totally liquid and this m5 will totally vapor, and these two, the summation of these two is equal to m, because m will come here and divided in two part, m5 and m9. I think you have seen in last video. Now the m9 will go into the next expansion valve and then go into the flash chamber at point 10. It will separate into the vapor and liquid again. Then the m3 will go in this compressor, intermediate compressor, and this is fully vapor, and m11 go into the next expansion valve. So the mass m9 will come in this flash chamber at point 10. At point 10, mass m9 will enter. This will be divided in m3 plus m11. Okay, and this, now the mass of the liquid m11 goes into the evaporator and m1 is equal to m11. These all things I have discussed in the theory portion in the last video. Okay, if you want to recall, I will show you this slide. Okay, m is the mass of the refrigerant leaving the condenser, m5 the mass of the saturated vapor separated into the flash chamber 2, and m5 is equal to this, m9 is equal to the saturated liquid leaving the flash chamber f2. So m9 is equal to this, and this formula is this. m3 is the mass of saturated vapor refrigerant separated in flash chamber this. तो आपका ये इस तरह से आ जाता है. ये पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये पूरी स्लाइड मैं आपकी डिस्कस कर चुका हूँ वेरी डीपली. सो यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं, इसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ से हम ये फॉर्मूले निकाल लेंगे, इसको मैं अभी दोबारा आपको बताऊँगा. ओके, सो ओके, क्लियर. 1 to 2 आपका क्या है, ये कंप्रेशर प्रोसेस है. 3 to 4 क्या है, ये कंप्रेसर प्रोसेस है. 5 to 6 क्या है, ये कंप्रेसर प्रोसेस है. ये जो कंप्रेसर प्रोसेस होता है मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ. दीज ऑल आर द, अगर आप TS डायग्राम बनाएं तो ये सभी क्या होंगे, आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी. तो हमें मेनली क्या करना है, हमें पावर फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट. पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें हर पॉइंट पे 2 पे 4 पे 6 पे 5 3 1 HF11 HF9 HF7 ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हमें. ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम पीएच चार्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, और x8 की वैल्यू x10 की वैल्यू ये भी फाइंड आउट करनी है. तो ये सारी चीज़ें हम पीएच चार्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें अमोनिया एज द रेफ्रिजरेंट है, तो अमोनिया का आप प्रेशर एंथैल्पी चार्ट देखेंगे, और आपको कंडीशन दे रखी है 2.5 प्रेशर. तो 2.5 प्रेशर पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और कहाँ तक ले जाएंगे, सैचुरेटेड वेपर कर्व तक. दिस इज द सैचुरेटेड वेपर कर्व. जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो 0.1 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम H1 फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है,
H1 फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, S1 भी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वी फाइंड द H1 and also find the S1. We know that S1 is equal to S2 because process 1 to 2 in the compressor is isentropic process. So in this process S1 is equal to S2. तो S2 will be also the same. तो S1 is equal to S2, इससे हम पॉइंट 2 फाइंड आउट करेंगे. हाउ वी फाइंड द पॉइंट 2, एज आई डिस्कस मनी टाइम. यहाँ से जो आपका दिस entropy lines passing through the point 1 is also passed through point 2. This is the entropy line curve. This is the entropy line curve. Okay, like this. ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसा हो, क्योंकि यहाँ मेरा डायग्राम आपका स्केल से नहीं बना हुआ है, तो इस तरह से है. आप देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी शेप कुछ और हो, ऐसे हो, वो आप उसको देख लीजिए. ठीक है. तो दिस इज़ द एंट्रोपी लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम 1 और 2 पॉइंट. हम कैसे करेंगे, ये 1 पे हमने एंट्रोपी निकाल ली कि ये एंट्रोपी 1 पे S1 है ये. ठीक है. अब हमें पॉइंट 2 कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट 2 विल लाई एट प्रेशर 15 बार. तो 50 वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द 15 बार एंड अप टू द कर्व S1. when this horizontal line intersect with this curve, then point 2 will find and correspondingly H2 we can calculate. Okay. Similarly from H3 find out करने के लिए we draw the horizontal line from the pressure 5 bar up to this saturated curve, then find the H3 and S3 we find out कर लेंगे हम यहाँ पर. S3 is equal to S4 because this process is compression process and this is isentropic process, and S3 is equal to S4. So how to find the point 4? We draw point 4 lie same at the pressure 15 bar. We draw the horizontal line from the 15 bar and where this curve and this horizontal line will intersect, then we find the point 4 is this, correspondingly H4. So we can find out the H4 also. Similarly the point 5 will lie, this is the point 5 will lie at 10 bar. 10 बार से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. ठीक है. तो H5 हमने फाइंड आउट कर लिया, यहीं से हमने S5 भी फाइंड आउट कर लिया एंड S5 इज इक्वल टू S6. ठीक है. S6 कहाँ लाई कर रहा है, S6 विल लाई एट 15 बार. सो वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन अप टू दिस कर्व. सो दिस पॉइंट इज 6. सो फाइंड द H6. तो हम यहाँ से H2 फाइंड आउट कर लिया, H4 फाइंड आउट कर लिया, H6 फाइंड आउट कर लिया, H5 फाइंड आउट कर लिया, H3 फाइंड आउट कर लिया, H1 फाइंड आउट कर लिया. सिमिलरली एट 15 बार दिस पॉइंट 7 विल लाई ऑन द सैचुरेटेड लिक्विड कर्व. तो S7 फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज HF7. HF का मतलब लिक्विड, तो HF7. सिमिलरली HF9 फाइंड आउट कर लेंगे. सिमिलरली इस पॉइंट पे 5 बार पे HF11, तो HF11 फाइंड आउट कर लेंगे. हाउ टू फाइंड द X8 एंड X10? इफ़ वी फाइंड द पॉइंट 7, 15 बार से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक ड्रॉ की, सैचुरेटेड कर्व तक. 15 बार से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अप टू दिस सैचुरेटेड कर्व. यहाँ इंटरसेक्ट किया तो ये 7 पॉइंट मिल गया. यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इस 10 बार से एक हॉरिजॉन्टल और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जहाँ मीट करेगी, तो वो क्या होगा आपका पॉइंट 8 होगा. और उस पॉइंट पे इस तरह का एक कर्व पास हो रहा होगा, दैट इज X8. ओके. तो यहाँ से X8 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर सिमिलरली X10 की वैल्यू, दिस इज द X10 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 बार से हॉरिजॉन्टल और 0.9 हम वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे. 10 बार से हॉरिजॉन्टल अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज़ द X10. सो ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी. X8 की वैल्यू गिवन होगी यहाँ पर इस कर्व पे लिखी होगी और X10 की वैल्यू भी इस कर्व पे लिखी होगी. तो वो आप सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे. ये सारी चीज़ें जब हमने फाइंड आउट की तो H1 आ गया, S1 इज इक्वल टू S2 आ गया. तो हमने H2 फाइंड आउट कर लिया. पॉइंट 2 आपने देखा यहाँ पर पॉइंट 2 फाइंड आउट करा हमने. ऐसे ही 5 बार पे हमने H3 देखा, S3 इज इक्वल टू
H4, तो वहाँ से हमने H4 फाइंड आउट कर लिया, ये आपका H4 था, H3 to H4। और सिमिलरली हमने H5 फाइंड आउट कर लिया प्रेफर 10 बार पे, और S5 फाइंड आउट कर लिया, S5 इज इक्वल टू S6, वहाँ से हमने H6 फाइंड आउट कर लिया। HF7 हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू H8 आल्सो। X8 भी फाइंड आउट कर लिया, मैंने बताया था। यहाँ से 7 पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन 10 प्रेशर बार से, और ये जो कर यहाँ से पास हो रहा होगा दैट इज X8। ओके, ऐसे ही हम 5 बार पे HF11 फाइंड आउट कर लेंगे, और वहाँ से हम ये ओके, और X10 भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, फॉर्मूले आपको निकालने हैं। अगर आप याद कर पाएंगे तो अच्छा है, डायरेक्टली लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने फॉर्मूले लगाए हैं डायरेक्टली। m इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अगर आप देखेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, मैं फिर से बताता हूँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है। इवेपोरेटर में मास m1 जा रहा था, ओके, और वहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हो रही थी वो H1 से H12 से H1 हो रही थी, और H12 किसके बराबर था, M1 H1 माइनस HF11। ओके, आप थोड़ा सा इस स्लाइड को देखिए, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, MQ, ये M1 H1 माइनस H12 इज इक्वल टू दिस, और ये M1 इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हमें M1 नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली M चाहिए। तो हम M1 को, या M1 इज इक्वल टू M11, और M11 को हमने निकाल रखा है M के टर्म्स में। तो M के टर्म्स में ये आएगा M 1 माइनस X8 1 माइनस X10। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आएगा M, वो आएगा 210 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो हमारा आएगा वो आएगा दिस 210, और यहाँ पर आना चाहिए हमारा ये हमने सपोज करो M1 निकाला अगर होता तो आता 210 अपॉन H1 माइनस HF11। ठीक है, अब M1 की जगह हमने क्या रख दिया, M टाइम्स दिस। तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस X8 और 1 माइनस X10। ओके, तो दिस फॉर्मूला विल कम। आपको फिर याद करना नहीं है, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जो M है M कैसे निकालेंगे आप, M5 कैसे निकालेंगे, M9 M3, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ये आपको बता रखी हैं। देखिए ये आगे, और M1 और M का रिलेशन। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो याद आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपका जो M आया वो क्या आया, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को हमें किससे डिवाइड करना है, 210 Q को हमें, एक तो इधर है H1 माइनस HF11। तो यहाँ पर हमें अगर ये M1 होता, सपोज करो यहाँ पर M1 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी जगह हम M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, M1 यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर M आएगा ये, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस X8 अपॉन 1 माइनस X10, 1 माइनस X8 और 1 माइनस X10, यानी कि M1 की जगह क्या आना चाहिए, बराबर M इंटू 1 माइनस X8 इंटू 1 माइनस X10, ये आना चाहिए M1 की जगह। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ से M आया, यहाँ पर क्या चला गया, ये M5 और ये, तो यहाँ पर एक X8 आ रहा है और यहाँ पर एक X10 आ रहा है। तो अगर हम इसको M को 1 माइनस X8 कर दें और 1 माइनस X10 कर दें, तो यहाँ पर जो फ्लो होगा M1 वो आ जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मास फ्लो रेट इन द कंडेंसर विल बी दिस। ओके, और यहाँ से हम मास फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। Q हमें दे रखा है 10 TR न्यूमेरिकल में, दिस इज गिवन। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपका अलग अलग होगा, लोअर प्रेशर कंप्रेसर के लिए, इंटरमीडिएट प्रेशर कंप्रेसर के लिए और हाई प्रेशर कंप्रेसर के लिए। ये वर्क डन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, लाइक दिस दीज आर। ठीक है, तो लो प्रेशर में क्या जा रहा है, M1 मास जा रहा है, M1 H2 माइनस H1, एंथैल्पी 0.2 और 0.1, यानी कि H2 से H2 हो रही है, तो H2 माइनस H1 मल्टीप्लाई होगा।
इंटरमीडिएट कंप्रेसर में M3 जा रहा है और एंथैल्पी चेंज हो रही है 3 to 4, ठीक है। तो दिस, और इसमें जा रहा है H5। अब हमें सबको M के टर्म्स में अगर रखना है तो M1 क्या है, M1 M टाइम्स ऑफ दिस, M3 क्या है, M टाइम्स ऑफ x10 इंटू x1 माइनस x8, ठीक है। और M5 क्या है, M टाइम x8। अब इसको याद करना है, ये M टाइम्स 1 माइनस x8 1 माइनस x10 है, ये x10 1 माइनस x8 है और ये सिर्फ x8 है। तो इसको किस तरह से हम रिकॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम याद रख सकते हैं, वो ये है। यहाँ पर M1 है, यहाँ पर x8 उसके बाद भी एक एक्सपेंशन लगा हुआ है, तो 1 माइनस x8 और 1 माइनस x10, ओके। यहाँ पर आपका अगर M3 निकालेंगे तो M3 निकालेंगे तो यहाँ पर एक बार x8 आ रहा है और x10 यहीं पर आ रहा है इसी के साथ, तो x10 से सिंपली मल्टीप्लाई होगा और ये 1 माइनस x8। ये याद करने का तरीका है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 10 आ ही नहीं रहा है, 10 तो बाद में आएगा, 8 पॉइंट आ रहा है और वो भी इसी लाइन पे आ रहा है, इसी प्रेशर पे आ रहा है, तो सिर्फ x8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम m को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, दोनों ही 1 माइनस x8 भी हो रहा है, 1 माइनस x10 भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे ना 10 पॉइंट है ना 8 पॉइंट है, तो दोनों 1 माइनस। यहाँ पर अगर M3 निकालेंगे तो यहाँ पर 10 पॉइंट इसी प्रेशर पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और x8 इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो 1 माइनस x8 और सिंपली मल्टीप्लाई x10। और M5 निकालेंगे तो x10 तो है ही नहीं, और यहाँ पर जो 8 पॉइंट लाई कर रहा है, x8 लाई कर रहा है, वो इसी प्रेशर पे इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई x8। अगर उसी लाइन पे लाई कर रहा है जिस लाइन पे हमें मास निकालना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई बाई x8 या x10। अगर उसके ऊपर लाई कर रहा है तो 1 माइनस x8। ये याद करने का तरीका है, दिस इज नॉट द टेक्निकल लॉजिक, ओके। सो ऑल द थिंग्स यू मे कैलकुलेट, मैंने आपका लास्ट वीडियो का भी कुछ पोर्शन दिखा दिया, दिस ऑल पोर्शन और फ्रॉम द लास्ट वीडियो। सो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। मैंने सभी वर्क डन को WL प्लस WI प्लस WH सबको ऐड कर दिया, M कॉमन ले लिया, तो ये पहला का आ गया, ये दूसरे का आ गया और ये थर्ड का आ गया। ये टोटल हमें H1 H2 H3 H4 और X10 और X8 सब कुछ पता है, सब कुछ हम निकाल चुके हैं। वर्क डन ये आ जाएगा किलो जूल पर मिनट, ओके। इसको हमें पावर में कन्वर्ट करना है, तो एज यूजुअल वाट में लानी है, तो किलो जूल पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से नीचे डिवाइड करेंगे, तो दिस इज इन सेकेंड, और ये आपका क्या हो गया, किलो वाट, ओके। तो पावर विल कम इन किलो वाट, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट, आप लास्ट वीडियो को, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको और इसको कंबाइंडली देखें, तो शायद आपको ये फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपने कोई डेटा मिस कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।